Good morning, student. So today we'll start our next topic, that is occupational hazard. So the people, those who are working in a wool industry, for them the wool industry is an important source of livelihood. Okay, बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो वूल इंडस्ट्रीज पे बेसिस होती है, बिकॉज द पीपल हु डू द जॉब देयर दे गॉट देयर सैलरी. सो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वूल इंडस्ट्री में काम करना. कुछ लोग क्या करते हैं, द पीपल, सम पीपल डू द प्रोसेसेस ऑफ सॉर्टिंग. कुछ पीपल सॉर्टिंग मतलब सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ द शीप इनटू फाइबर ऑफ डिफरेंट क्वालिटी. कुछ ये करते हैं, कुछ कोई और काम करते हैं. तो इन लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो वूल इंडस्ट्री से है. ठीक है. सो द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग, दैट मीन्स द सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ द शीप इनटू फाइबर, दे आर कॉल्ड सॉर्टर्स. उनको सॉर्टर्स बोला जाता है. और जो सॉर्टर्स की जॉब होती है इज वेरी रिस्की, एंड इट इज रिस्की बिकॉज दे गेट इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड एंथ्रेक्स. ठीक है. उनकी रिस्की क्यों होती है जॉब, बिकॉज they all get infected by the bacteria anthrax which causes a deadly blood disease called Sorter's disease. ठीक है. इससे इस बैक्टीरिया से, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से एक बहुत ही डेडली डिजीज हो जाती है, ब्लड डिजीज, जिसको हम सॉर्टर्स डिजीज बोलते हैं. सो जो ये लोग होते हैं, they face the risk of working in these type of industries, and this is due to the nature of their work, and that is why it is called a occupational hazard. Okay. So Sorter disease is also known as occupational hazard, and this is very important. Okay. And this is caused by the bacteria, I already told you, anthrax. Anthrax is the bacteria through which Sorter disease caused. Okay. Now the next topic which I already told you about silk. Silk is also a natural fiber, and it is obtained from the insect called silk moth. So silk fiber are also animal fiber. Silk fiber को हम animal fiber भी बोलते हैं. And silk spin the silk fiber, and the silk fiber is made up of protein जो कि एयर के कांटेक्ट में हो जाने के बाद हार्ड हो जाता है. तो silk is the strongest natural fiber. Then sericulture, that means silk farming. Okay. So the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. ठीक है. So sericulture means silk farming. So the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. ठीक है. सिल्कवॉर्म का पालन करना, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सेरिकल्चर कहलाता है. एंड इट इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया का सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है सेरिकल्चर. इंडिया इससे अ लॉट ऑफ सिल्क इज प्रोड्यूसेस इज इंडिया ऑन अ कॉमर्शियल स्केल. So before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. Silk moth की life history जानना बहुत जरूरी है. This life history I already told you in first video of this chapter, but still. So life history of silk moth means the formation of silk moth. यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, दे ले एग्स ऑन मलबरी लीव्स. ठीक है. मलबरी लीव्स पे दे ले एग्स. ओके. देन द एग्स आर हैच्ड. फिर एग्स बड़े होते हैं, हैच होते हैं इनटू अ वेरी स्मॉल लार्वा विद इन अ वीक के अंदर. ओके. देन द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ आर कॉल्ड कैटरपिलर्स. उस लार्वे का नाम चेंज हो जाएगा, उसको हम कैटरपिलर या फिर सिल्कवॉर्म बोलेंगे. और ये सिल्कवॉर्म सिर्फ मलबरी ट्रीज की लीव्स को खाता है और साइज में बड़ा होता जाता है, एंड ग्रो इनटू अ बिगर साइज. आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ कोकून. So when the silkworm or caterpillar is ready to enter the next stage, जब वो next stage पे जाते हैं of its development, it's called pupa. तो वहां पे it first weave a net to hold itself. अपने आप को होल्ड करने के लिए अपने आप का लिए नेट वीव करते हैं, और then it swing its head from side to side, and during this movement of head, the silkworm secrete fiber. अपने हेड की मूवमेंट करते हैं लाइक दे ड्रॉ 8. ओके. नाउ यू कैन से लाइक दिस. अपनी हेड की मूवमेंट ऐसे करते रहते हैं, एंड इन दिस प्रोसेस दे वीव अ नेट.
then it swing its head from side to side and during this movement of head वो the silkworm secrete fiber, silkworm fiber secrete करता है जो कि किससे बना हुआ होता है, made up of protein. And when this protein when get exposed to air, जब air के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है सिल्क थ्रेड की तरह. तो soon the silkworm caterpillar cover itself by fiber, silk fiber and turns into a pupa. और फिर उसके बाद उसको pupa में चेंज हो जाता है और उस कवरिंग को हम कोकून बोलते हैं. And this silkworm continue to develop in the form of pupa inside the cocoon to form the silk moth. तो यहां से आपका सिल्क मॉथ बनता है. नाउ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क की प्रोडक्शन कैसे होती है देखिए. In order to produce silk, just the silkworm developing into the inside the cocoon is not allowed to mature. उसको अलाउ नहीं किया जाता कि to mature होए और adult silk moth बने. So as soon as the cocoon is formed, it is used to obtain silk fiber. वहां से silk fiber उसको जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसमें से silk fiber जो है ले लिया जाता है. तो silk fiber जो जब लिया जाता है तो जो silkworm होते हैं जो कि प्यूपा की फॉर्म में होते हैं वो ऑलरेडी मर जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं. लेकिन कुछ जो silkworm होते हैं आर हाउएवर अलाउड टू लिव एंड मेच्योर. उनको लिव और थोड़ा बड़ा होने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो सिल्क मॉथ में चेंज हो जाए एंड देन दे कैन ले एग्स टू प्रोड्यूस सिल्कवर्म्स. ठीक है, ताकि वो और सिल्कवर्म को प्रोड्यूस कर सके. तो जैसे कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, सो द सिल्कवर्म देयर यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर. ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि सिल्क मॉथ एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उनका जो सिल्क जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी डिफरेंट होता है. कुछ कोर्स होते हैं, स्मूथ शाइनी होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क होते हैं जैसे तसार सिल्क, कोसा एंड मोगा सिल्क. ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स के द्वारा स्पन किए जाते हैं. ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ. सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है मलबरी सिल्क मॉथ. तो जो यहां से सिल्क ऑब्टेन होता है फ्रॉम द कोकून ऑफ मलबरी सिल्क मॉथ इज कॉल्ड मलबरी सिल्क, इसीलिए उसको मलबरी सिल्क बोला जाता है. तो मलबरी सिल्क बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत शाइनी होता है एंड इलास्टिसिटी होती है और वो बहुत डिफरेंट कलर में डाई किया जा सकता है. ओके, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, फीमेल फर्टिलाइजेशन होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल सिल्क मॉथ. दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल सिल्क मॉथ. ओके, देन द फीमेल मॉथ ले एग्स, दिस ले एग्स ऑन मलबरी लीव्स. तो एग्स कहां पे बन रहे हैं आपके, मलबरी लीव्स पे. देन उसके बाद कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ एग्स. यहां पे आपका सिल्कवर्म प्रोड्यूस हुआ. नाउ जो लार्वा है लार्वा फीड ऑन द मलबरी लीव्स को ही वो खाता रहता है एंड देन ग्रो इनटू अ बिगर साइज. ओके, एंड इट फॉर्म अ कोकून. फिर डेवलपमेंट ऑफ कोकून अराउंड अ कैटरपिलर, अपना वो एट के डायरेक्शन में हेड स्विंग करके पूरा कोकून बना देता है अंदर लार्वा. ठीक है, सो इस कोकून को जब हम निकालते हैं पानी में उसको डुबोते हैं, बहुत दिनों तक कोकून को रखा जाता है तो जो अंदर का लार्वा है वो अपने आप मर जाता है और ऊपर के जो फाइबर है उसको यूज किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. नाउ सिल्क अब प्योर और आर्टिफिशियल दोनों फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो जो प्योर सिल्क है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. वो किससे बनाता है, प्रोटीन से बनाता है. वाइल जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, वो वुड पल्प से बनता है और एंड इट इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल, मतलब सेल्यूलोज प्लांट मटेरियल से बनता है जिसका नाम है सेल्यूलोज. सो जस्ट लाइक सिल्क, वूल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन. जैसे कि सिल्क प्रोटीन से बनता है, वूल भी प्रोटीन से ही बनता है. सो अ पीस ऑफ वुलन फैब्रिक ऑल्सो बर्न गिव द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर. तो या तो सिल्क हो प्योर या फिर वुलन फैब्रिक हो, दोनों क्या देंगे आपको, दे गिव द स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर. जैसे हेयर को जब हेयर बर्न होता है तो जैसी स्मेल आती है वैसी उनको बर्न करने में वैसी ही स्मेल आती है. तो वो थ्रेड दैट गिव अ स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर विल बी अ कॉटन फाइबर. ये आपका जो वुलन फैब्रिक है वो कैसी स्मेल देता है, स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर. और अगर मैं कॉटन को जलाती हूं तो कॉटन फाइबर कैसी स्मेल देता है, दैट गिव अ स्मेल ऑफ अ बर्निंग पेपर. सो कॉटन एंड पेपर बोथ आर
कार्बोहाइड्रेट्स, दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, बिकॉज पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेपर भी सेल्यूलोज से बनता है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प एंड कॉटन. सो ऑन बर्निंग कॉटन एंड पेपर बोथ गिव द सिमिलर स्मेल, दोनों सेम सिमिलर स्मेल देते हैं. ओके ओके. नाउ अब आपको कोकून तो मिल गया, अब कोकून से सिल्क कैसे मिलता है. तो सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देन कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क. कोकून्स बहुत सारे कलेक्ट किए जाते हैं टू गेट द सिल्क थ्रेड. जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, जैसे कि मैंने बताया, दे ले 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक टाइम में 100 ऑफ एग्स देते हैं. और वो एग्स कहाँ स्टोर्ड होते हैं, आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ पेपर. कहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है, या तो पेपर के स्ट्रिप्स पे या फिर क्लोथ पे, एंड उसके बाद वो सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है. तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे कीप द एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन. हाइजीनिक कंडीशन में एग्स को रखते हैं बहुत दिनों तक, थोड़े वार्म कंडीशन में. दे वार्म देम टू अ सुटेबल टेम्परेचर. थोड़ा वार्म कंडीशन रहेगा तभी लार्वा जो है दे लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, एग्स से लार्वा हैच आउट होगा. ठीक है. सो जो लार्वा है उसको कहाँ रखा जाता है, उसको क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स. ठीक है, बैम्बू की ट्रे में रखा जाता है और साथ में मलबरी लीव्स भी रखी जाती है. सो 25 और 30 डेज के बाद जो सिल्क फॉर्म होता है, दे स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग द कोकून. खाना बंद करके अब स्पिनिंग, दे स्टार्ट स्पिनिंग द कोकून को स्पिन करना शुरू कर देते हैं. तो जो स्मॉल रेक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे, अब मलबरी लीव्स के बजाय ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून्स गेट अटैच, जिससे कि कोकून जो है अटैच हो जाए. ठीक है. और वो स्पिन करना तो शुरू करता ही है, बट उसको सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए ट्विग्स को वहां पे ट्रे में रखा जाता है. ओके. देन लाइक दिस, ये दिस फीमेल सिल्क वॉर्म है, 100 ऑफ एग्स एक साथ दे दिया. और उसके बाद ये मलबरी ट्री होता है, ये इस तरीके का लार्वा होता है आपको जो फीड करता है मलबरी लीव्स पे. लीव्स इस तरीके की शेप की कुछ होती है, और बहुत सारा कोकून जब कलेक्ट होता है तो लाइक इन दिस शेप. ओके. सो जो कोकून्स है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट करके बॉईल किया जाता है वाटर में, ताकि उसके अंदर का जो इंसेक्ट्स है वो मर जाए. एंड द रिजल्टिंग फाइबर जो मिलता है उसको हम बोलते हैं रॉ सिल्क. तो जो सिल्क यहाँ से जो है सिल्क फाइबर को सेपरेट किया जाता है. उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क. नाउ इन दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द फाइबर फ्रॉम द कोकून. ठीक है, ये प्रोसेस में आपका फाइबर को कोकून से अलग किया जाता है फॉर यूज एज अ सिल्क, एंड दिस इज नोन एज रीलिंग द सिल्क. सो रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन. रीलिंग स्पेशल मशीन्स में होता है. देन द सिल्क फाइबर आर स्पन इनटू सिल्क थ्रेड. फिर सिल्क फाइबर सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स. वीवर्स उसको सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं. सो सिल्क जो है ऐसे प्रोड्यूस होता है सिल्क क्लॉथ. नाउ क्या डिस्कवरी कैसे हुई थी सिल्क की. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस स्टोरी, द डिस्कवरी ऑफ सिल्क. तो जो डिस्कवरी हुई थी सिल्क की वॉज मेड इन चाइना अ लॉन्ग टाइम बैक. बहुत साल पहले चाइना में हुई थी इसकी डिस्कवरी. तो अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज लेजेंड, उसका नाम था, एक एम्प्रेस था जिसका नाम था सी टूंग ची. ठीक है. वो वॉज asked by the emperor Huang Ti find the cause of damaged leaf of mulberry trees. तो एम्प्रेस को बोला गया कि जो एम्परर था हुआंग टी, उसके गार्डन में मलबरी पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे, और उन पेड़ में उनकी पेड़ की जो लीव्स थी वो डैमेज हो रही थी डेली. ठीक है. तो जो उन्होंने अपने एक एम्प्रेस सी टूंग ची को बोला कि इसका कारण पता करो कि वाई दे आर डैमेजिंग डेली, कुछ ना कुछ लीव्स डैमेज हो जाती है. सो द एम्प्रेस फाउंड दैट देयर इज अ वाइट वर्म दैट ईट द मलबरी लीव्स. तो एम्प्रेस ने देखा कि कुछ व्हाइट कलर के कीड़े हैं जो कि मलबरी लीव्स को खा रहे हैं. तो शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कोकून अराउंड दैम, और वो कुछ शाइनी कुछ स्पिन भी कर रहे हैं. तो एक्सीडेंटली एक कोकून उनकी चाय की कप में आके गिरता है. एंड जैसे ही चाय के कप में गिरता है, क्योंकि बिकॉज टी जो है गर्म थी, तो गर्म होने की वजह से उसमें जो थ्रेड्स थे, वो जो कोकून था वो थ्रेड में एकदम डेलिकेट थ्रेड में सेपरेट होने लगा.
सो यहाँ से सिल्क की शुरुआत हुई. तो सिल्क इंडस्ट्री फिर बिगेन इन चाइना एंड देन वॉज केप्ट ऑन अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 of years. फिर लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज ऑल्सो. ठीक है. सो पहली बार जब वो रूट जो उन्होंने लिया था, दे ट्रैवल इन स्टिल, दैट इज कॉल्ड अ सिल्क रूट. यू हैव स्टडीड इन योर हिस्ट्री ऑल्सो. ठीक है. उस रूट को सिल्क रूट कहा जाता है. इवन टुडे चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन. सिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे चाइना है एंड इंडिया इज ऑल्सो अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया भी आता है बट चाइना सबसे आगे. इन इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन आर एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्ट. बहुत सारे विमेन जो है वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कि रेयरिंग करना, रीलिंग करना फ्रॉम कोकून एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक. बहुत सारे उसमें जो है हमारे इंडियन वुमेन जो है इन्वॉल्व है. So this is all about the life history of silk moth, about natural and synthetic, artificial fiber or synthetic fiber you can say. So we studied broadly about wool and silk. Okay. So just note down all the notes and do the question answers also. Now there are some questions which I want you to know. These are very important question. Note down this question in your notebook also. So in question number 1, Paheli went to the market to buy a sari for her mother. She took out a thread from the edge of the two saris shown by the shopkeeper and burned them. One thread burned with the smell of burning hair and the other burned with the smell of burning paper. Which thread is from a pure cotton sari and which one from a pure silk sari? Give reason for your answer. So जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट साड़ी जो है आपकी, वो उसमें से आप क्या करेंगे, one thread which burn with the smell of burning hair is फ्रॉम प्योर सिल्क. जैसे मैंने बताया आपको सिल्क कैसा स्मेल देता है, बर्निंग हेयर. तो आप क्या करेंगे, सिल्क और कॉटन के एक एक थ्रेड को बर्न करेंगे. ठीक है. क्योंकि सिल्क इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन फाइबर, सो ऑन बर्निंग द थ्रेड अ स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर कम आउट. एंड इन सेकेंड केस द थ्रेड विच बर्न विद द स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर इज फ्रॉम अ cotton sari. Okay, since the cotton and paper both are carbohydrate, so on burning they give similar smell. ठीक है. तो cotton and paper दोनों carbohydrate से बनते हैं, so they give the smell of burning paper. And silk it give us the smell of silk. और जो हमारा hair होता है वो प्रोटीन से बना होता है, that is why they give both the smell of burning hair. Okay, तो दोनों ही आपके अलग अलग स्मेल देंगे, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कॉटन की साड़ी है और कौन सी सिल्क की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेरियस स्टेप्स फॉर प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल. कौन कौन से प्रोसेस है बताया था मैंने आपको. शेयरिंग होती है जिसमें कि फ्लीस ऑफ द शीप इज रिमूव विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन. द सेकेंड इज स्काउरिंग. The sheared skin is then washed to remove grease, dust and dirt. After that, sorting, in which different texture of hairs are separated out or sorted. Then separating burrs, the fluffy fibers picked out from the hair. After that, dyeing, the fiber are dyed in various color as the original color of fleece and are usually black, white or brown. Okay, and the last one is rolling, in which the fiber are straightened, combed and rolled into yarn, and the fiber now are ready now as wool are ready to be woven. Okay, and the last question, describe the life history of silk moth with the help of various stage. सो ये वेरियस स्टेज मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखाई हुई है. इन विच द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्री. द एग्स हैच टू फॉर्म लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क फॉर्म.
And then the silkworm grow in size feeding on mulberry leaves, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history, that is called pupa. First weaver covering to hold itself, which is known as cocoon, and then pupa develop into cocoon into moth and come out as an adult male or female silk moth. Okay. So these are some important questions. Just note down all these questions also in your fair notebook, and the question which I have given you in worksheet also. Thank you.